Dear student, this is Shailesh Kumar and we are on the channel Think Math with Shailesh on YouTube. Now, in this video, we will learn to write addition sentence as per shown in the question. Here you will see that we have given some number lines. According to those number line, I have write the addition sentence as per the arrows marked on this number line. Let us see the first case. Here the number line is there and the first arrow is starting from 0 and move to the left. Now it stop at -3 and then from here it reverse and stop at 2. Now we will have to observe this movement of the arrow, and as per this movement we have to write the addition sentence for the given. As we know, for the movement from 0, that is the origin on the number line, to the left hand side is counted as negative and to the right hand side is considered as the positive. So in the first case, the movement start from 0 to -3. Therefore, I will write -3 as it is moving to the left, and then from -3 how many units it moves to the right direction. We will count this: 1 unit, 2 unit, 3, 4, 5. It has moved 5 units to the right direction. Therefore, I will write +5. Now, this is the required addition sentence where the middle symbol is of addition. So, we come to the second number line. Here, we shall see that the first movement from origin 0 is to the right direction. How many units are there to the right direction? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Therefore 9, I will write 9 here. Now from 9, it take a move to the left direction. And how many units it take the move? First, second. It take 2 units to the left. Therefore, I will write -2. Now, you will see this is the subtraction statement. But as per the question, I have to write the addition sentence. Therefore, what will I do? 9. I will convert this negative to plus and write -2 in the bracket. So now this sentence written in the black ink is the required addition sentence for the second number line. Now we are on the third number line. Here we shall see that the first movement is starting from 0 is as the movement is to the left and it is up to the 2 unit, first unit, second units. Therefore, I will write -2. Then it move further to the left. How many unit? First, second, third and fourth. So it moves 4 unit. So I will write -4. But I have to write or convert this into the addition sentence. Therefore, I will replace this symbol with the positive and write the -4 inside the bracket. Now you will see the fourth number line.
here the first movement is from 0 to the left direction, and how many unit it moves? 1 2 3 4 5. So after stop at 5 units, it moves back to the right direction to the how many units? Count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14. Let's do it again. Firstly, I will write -5. Then count the unit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 and 14. It moves 14 units to the right hand side. So I will write plus 14. This is the required addition sentence. Now we are on the last number line. Here we see that the first movement start from origin to the left direction. Therefore -4, and after that it moves to the right direction to how many units? 1 2 3 and 4. So I will write +4. So this is the required addition sentence. Now student, अभी मैं इसको आपको हिंदी में समझाता हूँ. तो क्या है इसका मीनिंग? राइट द एडिशन सेंटेंस शोन बाय द फॉलोइंग नंबर लाइंस. हमारे सामने कुछ नंबर लाइंस बनाई गई हैं इस वीडियो में, और उन नंबर लाइन के मुताबिक हमको जो इसका ऑपरेशन लग रहा है उस ऑपरेशन को हमने एडिशन सेंटेंस के रूप में लिखना है. एडिशन सेंटेंस का मतलब है जो कि सेंटर में सिंबल आता है वो एडिशन का होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए. शुरू में कोई भी सिंबल आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सबसे पहले हम अपने जो नंबर लाइन है उसके एरो की डायरेक्शन को चेक करेंगे. तो सबसे जो पहली नंबर लाइन है उसमें हम अगर 0 से स्टार्ट करते हैं और हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? नेगेटिव. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले -3. उसके बाद में जो हमारा एरो है वो राइट साइड की तरफ मूव करता है, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. इट मीन्स, पर ये हम कितने पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसको देखने के लिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से यूनिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. तो हमने प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 5 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे यूनिट कितनी बनती हैं? 5. तो -3 + 5 हमारा रिक्वायर्ड एडिशन सेंटेंस बन जाता है. उसके बाद में हम आते हैं दूसरी नंबर लाइन पे. दूसरी नंबर लाइन को देखने से पता लगता है कि सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करके हम 9 की तरफ जाते हैं. 9 जो कि पॉजिटिव है और हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शुरुआत में हम 9 लिखेंगे अकेला. उसके बाद में जब 9 पर पहुंचकर हम पीछे को मतलब जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है हमारा जो लाइन है, एरो है, तो वो कितने यूनिट मूव करता है? 1 2 यूनिट मूव करता है. क्योंकि जो ये एरो है ये 2 यूनिट्स बैक यानी लेफ्ट में मूव करता है, इसलिए हम इसके साथ -2 लगाएंगे. तो ये हमारा बनता है 9 - 2. बट हमारे को जो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, ये कहा गया है कि हमने एडिशन सेंटेंस लिखना है, बट ये तो हमारा सेंटर में माइनस आ गया. तो हमने इसको एडिशन में कैसे लिखना है? तो हम इसको जो -2 है, -2 को ब्रैकेट में ले जाएंगे और इस यहाँ पे एडिशन डाल देंगे. हमको पता है प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेसिकली उसका आंसर माइनस ही होता है. तो इसका दूसरा रूप हम इस तरह से बना सकते हैं. आगे है हमारे पास तीसरी नंबर लाइन. जो तीसरी नंबर लाइन है, तीसरी नंबर लाइन में हम देखेंगे जो हमारा पहला एरो है वो 0 से शुरुआत करके -2 के ऊपर आके रुक जाता है. तो पहली हमारी वैल्यू जो है वो है -2, और उसके बाद में ये फिर लेफ्ट डायरेक्शन में ही मूव करता है और कितने यूनिट आगे जाता है देखते हैं. 1 2 3 4. तो हम
-4 लिखते हैं। अब फिर सेम केस वहीं पे हो जाता है कि यहाँ पे सेंटर में माइनस है, तो हमने इसको माइनस को क्या करना है, माइनस वाले को ब्रैकेट में ले जाना है और बाहर प्लस डाल देना है। तो इस तरह से ये हमारा जो आया था आंसर, उसको हमने एडिशन सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन सेंटेंस को एडिशन सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद में ही हम आते हैं अपनी इस नंबर लाइन पे, जिसका आंसर है -5 + 14। तो सबसे पहले इसकी मूवमेंट देखते हैं। तो ये 0 से लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है, कितने यूनिट जाता है, 5 यूनिट। तो हमने लिखा -5। उसके बाद में ये -5 से मूव करता है राइट डायरेक्शन में और 8 पर आके रुक जाता है। तो हम यहाँ से यूनिट काउंट करेंगे कि कितनी यूनिट यहाँ पे ये मूव कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 यूनिट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 यूनिट तय कर रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे करेक्ट करते हैं, -5 + 13। हमारी लास्ट नंबर लाइन आती है जहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं। कितने यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट तक जाते हैं। उसके बाद में हम लेफ्ट डायरेक्शन से ही इसी पॉइंट से हम राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो कितने यूनिट मूव करते हैं, 1 2 3 4 यूनिट मूव करते हैं, इसलिए हम +4 डालेंगे और ये हमारा एडिशन सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने ये सारे एडिशन सेंटेंस में करने सीखे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। राइट द एडिशन सेंटेंस shown by the following number lines.